hello everyone. I'm Aradhika Sabharwal, and today we are going to do the webinar on positive parenting. So, before we begin, I'd like to begin with a small introduction. So, I'll give a brief introduction about myself, and then I'll request all of you to give an introduction about yourself too. So, I'm a counseling psychologist and rehabilitation counselor, RCI trainee. I have 1+ years of experience where my expertise mostly lies in the field of anxiety, trauma, grief, and helping clients deal with issues such as relationship issues, adjustment problems, emotional and behavioral problems, and I also help with inner child healing. I think I have joined Parent Eva because I deeply believe and resonate with their mission where they want to build a community of parents where they can not just come together but also learn from each other's experiences, share their own experiences, the issues, problems, or any pleasant experiences that they may be experiencing, and share it with other parents. And other parents can learn from their experiences, their lessons, and also bring together a whole resume of psychologists and counselors who can help the parents to deal with any problems that they may be facing, whether they are personal, parenting related, or any issues related to their children, or in fact any issues that the children may be facing on a personal level. So I think building that community is something that is a new initiative in the industry and is going to help a lot of parents. And that is exactly what brings us to today's webinar on positive parenting. But before we begin, I would like all of you to just briefly introduce yourself so that we can, have a better understanding and move ahead. Can any of you please begin? I am Gunmeet Kaur, co-founder of Parent Eva. I have started my company with my son Inderpreet Singh. Thank you for sharing, ma'am. Deepti, ma'am, would you like to share? Just a brief introduction, if you could just say your name and if you're a parent or not, that would be helpful. Yeah, if you're not comfortable in muting yourself, you can anyways type in the chat box. That would also be good. Okay, so let us begin. Let's try to understand what positive parenting is. Okay, so can any of you tell me what do you understand by the term positive parenting? It doesn't have to be right or wrong. कुछ भी that you understand by what positive parenting is. जो भी word सुन के लगता है क्या मतलब हो सकता है? If anybody can just, पॉजिटिव पेरेंटिंग आई थिंक कि जैसे जब हम अपने बच्चों को रेज करते हैं तो हमारी जब उनके साथ जो डीलिंग या जिसे हम जैसे उन्हें रेज करना चाहते हैं उसमें पॉजिटिविटी यानी कि हम उनके ऊपर चिल्लाएं मत या उन्हें जो हम्म, हमें गुस्सा करना उसकी बजाय अगर हम बच्चों को समझें उनकी फीलिंग्स को समझें उन्हें वैल्यू करें और साथ ही साथ अगर हम उन्हें अपने सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करवाएं ताकि वो समझ सकें कि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग या प्रॉब्लम्स क्या है तो अगर हम्म, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसे हम पॉजिटिव पेरेंटिंग कह सकते हैं you're absolutely right, मैम. आपने काफी अच्छे से और काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया पॉजिटिव पेरेंटिंग क्या है. एंड इनफैक्ट पॉजिटिव पेरेंटिंग बेसिकली इन्हीं टेनेट्स के ऊपर बेस्ड है. दीप्ति मैम, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? It doesn't have to be right or wrong, just anything जो आपको लगता है. जैसे गुरमीत मैम ने explain किया, what does she understand by the term? You can also type in the chat box. Okay, so जैसे गुरमीत मैम ने पॉइंट आउट किया कि पॉजिटिव पेरेंटिंग जिस तरह हम अपने बच्चों से पॉजिटिव टर्म्स में जिस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग में फोकस करते हैं, किस तरह से उनको प्रोवाइड करते हैं, इट्स जस्ट दैट पॉजिटिव पेरेंटिंग सिर्फ वही है एक्चुअली देखा जाए तो. So it's basically an approach जिसपे हमारा फोकस, गाइडेंस, कनेक्शन एंड टीचिंग पे रहता है, अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स फॉर्म करने पे रहता है, बाय प्रोवाइडिंग देम वार्मथ, लव एंड केयर,
rather than using harsh punishments, कंट्रोल, या फिर उनकी लाइफ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस या बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट बाउंड्री सेट कर देना, या उनको हर चीज पे डांटते रहना या चिल्लाते रहना। उसके बजाय हमें ऐसी चीज पे फोकस करना कि जहां हम उनके साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, उनके साथ प्यार से रह रहे हैं, और जितना हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हैं जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट पॉजिटिव पेरेंटिंग इज। जब हम ये सारी चीजें अपनी अप्रोच में ले आते हैं, पेरेंटिंग अप्रोच में, देन इट्स नोन एज पॉजिटिव पेरेंटिंग रादर देन द ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, जिसमें बच्चों ने गलती कर दी तो पेरेंट्स ने उन्हें डांट दिया। पॉजिटिव पेरेंटिंग कहता है कि डांटना जरूरी है बच्चों, पर डांटने का पर्पस तभी फुलफिल होगा जब बच्चों को उनकी गलती का एहसास हो। एंड अगर बिना डांटे ही उनकी गलती का एहसास दिला दिया जाए तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पॉजिटिव पेरेंटिंग इज। It's important to understand that every child deserves love, respect, and guidance. एंड ऑब्वियसली सब पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको जब डांटते भी हैं उनके पीछे भी उनका प्यार ही छुपा होता है, बिकॉज वो अपने बच्चे का अल्टीमेटली बेटरमेंट चाहते हैं। दे डोंट वांट उनका बच्चा परेशान हो या कोई गलती करे या कोई नुकसान पहुंचे उनके बच्चे को। बट जब हम ये सब चीजें कर रहे हैं उसके लिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स कई बार एज पेरेंट्स हमें लेने पड़ते हैं जो हमारे बच्चों को पसंद नहीं आते। जैसे कई बार हमें बहुत ऑफन देखा जाता है कि पेरेंट्स कई बार बच्चों का फोन ले लेते हैं जब उनके पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं, या फिर उनको डांट देते हैं। और बहुत ही रेयर सिचुएशंस में, बट कई जगह ये भी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को मार भी देते हैं, जैसे एक थप्पड़ मार दिया या वैसा कुछ। ऑब्वियसली ये बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में होता है, बट ऐसा होता है। नाउ इस सब के पीछे आपकी इंटेंशन एज अ पेरेंट ठीक होती है, दैट यू वांट आपका बच्चा गलत चीज ना करे, गलत रास्ते पे ना जाए, हमेशा कोई प्रॉब्लम या परेशानी में ना फंसे। बट अगर आपके बच्चे को वो फीलिंग ही नहीं आ रही है कि मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी केयर के लिए ये सब कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, अगर उसको ये फीलिंग ही नहीं आ रही है, बच्चा इनफैक्ट ये सोच रहा है मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते इसीलिए मुझे मार रहे हैं, देन दैट इज प्रॉब्लमैटिक। आप उसके बाद जितना मर्जी अपने बच्चे के लिए अच्छा करते रहिए, फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द चाइल्ड वोंट फोकस कि आप क्यों डांट रहे हो, क्यों गुस्सा कर रहे हो। वो सिर्फ डांट और गुस्से पे फोकस करेगा, राइट। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं, लव एंड रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग सब है, बट इट्स ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट कि आपके बच्चे को वो सब फील हो, आपके बच्चे को वो सब दिखे। बिकॉज कहीं ना कहीं इन देयर माइंड्स दे नो माई पेरेंट्स लव मी, इन देयर हार्ट्स दे नो माई पेरेंट्स लव मी, बट एट द सेम टाइम अगर उनको वो विजिबल नहीं है, इफ दे कैन सी दैट इन योर बिहेवियर, इन योर एक्शंस, इन योर वर्ड्स, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं कम हो जाती है। एंड द फीलिंग कि मेरे पेरेंट्स प्यार नहीं करते, मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान नहीं रखते, हमेशा डांटते रहते हैं, ये काफी कॉमन सुना जाता है, जहाँ पे बच्चे बहुत कॉमनली बोलते हैं दैट मेरे पेरेंट्स तो डांटते ही रहते हैं हर छोटी छोटी बात पे। So these feelings should not come, because when they are coming, what happens is the feeling that my parents love me और वो ये सब मुझे प्यार करने के लिए, मेरा ध्यान रखने के लिए आउट ऑफ कंसर्न कर रहे हैं, वो फीलिंग्स कम हो जाती हैं। तो इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चों को प्यार करें, उनका ध्यान रखें, बट एट द सेम टाइम उनको ये सब फील भी होना चाहिए, बिकॉज अगर उनको फील नहीं हो रहा है देन दैट्स ऑफ नो यूज। ओके। ओके, सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द केस स्टडी टुडे, जहाँ पे आई गिव अ वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ दिस यंग बॉय नेम जतिन, who's 7 years old, and किस तरह से his parents were struggling, बट आफ्टर अप्लाइंग पॉजिटिव पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स किस तरह से उनकी पेरेंटिंग थोड़ी इजियर हो गई, एंड इट बिकेम इजियर टू डील विद जतिन। सो जतिन इज अ 7-year-old बॉय हु रिफ्यूज टू लिसन टू हिज पेरेंट्स। चाहे उसके पेरेंट्स उसे पढ़ने के लिए बोलते थे, चाहे वेजिटेबल्स खाने के लिए बोलते थे, चाहे उसको कहते थे स्कूल की को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, चाहे अपना होमवर्क कंप्लीट करो, अदर देन प्रॉपर पढ़ना और एनीथिंग। what used to happen was that उसको डांट पड़ती रहती थी, एंड he would obviously time and again उसको समझाते रहते थे कि बेटा करो, बेटा क्यों नहीं करे, बेटा दिस इज नॉट ओके, बट दिस डिड नॉट हेल्प, बिकॉज ही वुड अगेन नॉट लिसन, क्योंकि जब उसको डांट पड़ रही है उसका डांट सारा फोकस पे पड़ता था, फोकस पे रहता था, दैट फोकस ही उस पर होती थी कि मुझे डांट पड़ेगी, माई पेरेंट्स आर स्कोल्डिंग मी, वो मुझे मार रहे हैं। कोई प्रॉब्लम, इससे पेरेंट्स के रिलेशनशिप में भी आपस में भी प्रॉब्लम होने लगी, बिकॉज पेरेंट्स वुड कॉन्स्टेंटली फाइट अबाउट दिस विद वन अनदर, एंड जतिन वुड ऑल्सो फाइट विद हिज पेरेंट्स दैट आप हमेशा मुझे डांटते ही रहते हो, ये कोई तरीका नहीं है, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। However, after applying the principles of positive parenting,
जहाँ पे they started to validate his feelings more often. They started to give him space कि ठीक है, उसको options देनी शुरू कर दी, asking about his opinions that okay, do you want to do your homework now or after dinner? Do you want to eat capsicum or carrots? Because एक तो खाना ही पड़ेगा. Things like these, when they started involving him, offering him choices, taking his opinions, parenting became a little smoother. Then he would often feel, Jatin को ऐसा लगता था, yes, my parents are listening to me. They're giving me the option to choose. They're giving me the situation जहाँ पे I am making decisions. So Jatin felt more in control of his life. At the same time, his parents were still guiding him through life. So what happened was parenting became smoother, less time consuming and tiring for his parents. And at the same time, Jatin started showing cooperation and understanding, where he would agree with his parents. कम लड़ाई करता था. When parents would say कि homework करो, तो वो मना नहीं करता था या चिढ़ता नहीं था. He would say हाँ करता हूँ, but can I play for 1 hour and then I'll do it. And then when he was given the permission to play for 1 hour, he would come back and finish his homework. So इससे हमें देखने को मिलता है how applying different positive parenting principles someone can actually improve their parenting style and also the relationship with their child. I would like to ask if any of you, relate to just तरह Jatin है. Do you feel your child is like Jatin? Or have you tried any new strategies जो आपको help करती है? Or anything that you found, relatable in this case study जहाँ पे आपको लगता है कि maybe, you have seen other children like Jatin. Anything like that? आप में से कोई share करना चाहेगा? Anything if you could add, anybody? यस ऑफ कोर्स। मैंने भी देखा है कि जब हम बच्चों को थोड़ी स्पेस देते हैं या जब उनकी बात को सुनना शुरू करते हैं कि जो वो बोलना चाहते हैं, अपनी जो फीलिंग्स उनके अंदर है, चाहे वो गुस्सा है या जब उन्हें लगता है कि पेरेंट्स हमारी बात नहीं सुन रहे या मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो सुन नहीं रहे, जब वो पेरेंट्स सुनना शुरू करते हैं, उनकी फीलिंग्स को थोड़ा सा वैल्यू करना शुरू करते हैं, तो बच्चे भी उस बात को वैल्यू करके पेरेंट्स की बात को सुनते हैं। अगर पेरेंट्स उस बात को उनकी कोई बात को सही तरीके से सुन के, उन्हें सही या गलत बता के, उन्हें डिसीजन लेने को बोलेंगे, तो वो शायद बच्चे उस बात के ऊपर वर्क भी करेंगे कि हमें इन दोनों की बीच में बोला गया है कि ये दोनों रास्ते दिखा दिए हैं कि हमने चूज़ करना है, स्पेस दे दी है पेरेंट्स ने। तो इससे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में थोड़ा-सा अच्छे तरीके से डील होना शुरू हो जाता है। You're absolutely right, मैम. बच्चों को जब स्पेस देते हैं, उनके ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव्स को पेरेंट्स कंसिडर करते हैं, बच्चों को भी लगता है कि हमें इन्वॉल्व कर रहे हैं हर डिसीजन में एंड दे फील दैट दे आर इन चार्ज एंड इस वजह से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखती है उनके बिहेवियर में. वुड एनीबडी एल्स लाइक टू ऐड एनीथिंग? कुछ भी, एनी थॉट्स दैट यू हैव, एनीथिंग? प्रभजोत मैम, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? Vijay sir, how about you? Would you like to add anything, any thoughts, any feedback, anything regarding Jatin's story or anything in general? Okay, so हमने जिस तरह केस स्टडी में देखा कि Jatin's parents started employing the principles of positive parenting. So what are these principles exactly जिनके बारे में मैं बार बार बात कर रही हूँ कि ये principles आपको help करेंगे आगे deal करने में, आपकी parenting smooth बना देंगे. So what exactly are these principles? Let's try to understand these. So the first one is providing them warmth and responsiveness. इसका क्या मतलब होता है? इसका सिंपल सा मतलब है providing our children with a warmth, like ऐसा एक environment उनको देना जहाँ पे they feel comfortable, they feel safe. हम उनसे जिस तरह बात कर रहे हैं, it should feel comfortable to our children कि उनको अपने पेरेंट्स से कोई भी बात करने से पहले they should not think twice. They should just come, they should be able to just come to their parents and say anything because they feel that level of comfort and homeliness with their parents, right? You should always be responsive to your children.
वो कोई भी आपसे बात कर रहे हैं, कोई अपनी परेशानी लेके आ रहे हैं, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, या आपसे जस्ट इन जनरल आपका ओपिनियन जानना चाहते हैं, या अपनी डेली लाइफ की कोई भी नॉर्मल बात भी शेयर कर रहे हैं, नेवर इग्नोर देम, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिव। अगर वो कोई बात बता रहे हैं, शो इंटरेस्ट टू देम, उनको दिखाइए आप उनकी बात सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं उनकी बात को आप सुन रहे कि हाँ हाँ अच्छा ठीक है अच्छा अच्छा गुड गुड, बट इट शुड ऑलवेज बी लाइक यस बेटा, अच्छा फिर क्या हुआ, what did you say, all of these things should be there when you're communicating with your children. The communication should always be respectful. आप जब अपने बच्चों से बात कर रहे हैं, the language should be such that your children feel that my parents respect me. It should never be like my parents are just saying this, my parents don't respect me or my opinions. ऑफन देखा जाता है व्हेन चिल्ड्रन कम, वो कोई बात करते हैं आपसे, एंड पेरेंट्स कई बार कहते हैं तुम्हें अकल नहीं है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुम्हें सोचना चाहिए था। rather than using this language, it should be the other way around, where you are saying कि बेटा okay आपने ऐसे किया, but don't you think it was wrong to say this or do this? How could you slap your friend? Beta, I don't think it was wrong, I don't think it was right. I understand you were very angry about what she did or what he did, but I don't think it was the right approach. Be respectful. कभी भी उनसे बदतमीजी से बात मत कीजिए, बिकॉज बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं. So, when our children watch their parents, always fighting and, using foul language with one another, बदतमीजी से parents आपस में बात कर रहे हैं, चिल्ला के loud voices में बात कर रहे हैं, children think that this is normal. They become conditioned with this, कि this is very normal, कि आपको गुस्सा आ रहा है, you disagree with the other person, you can use this sort of language. And ultimately, not only do the children use this language with their friends, but they also begin to use this language with their parents, which again parents don't like because of obvious reasons. Parents begin to feel that, my child is being disrespectful towards me. But the fact is, the child actually learned this from the house, from the people in the house itself, which again is wrong. So the communication language should always be respectful, not just with children, but with each other. Parents को आपस में, if you're living in a joint family, ensure grandparents बच्चों से आपस में, अपने बच्चों से सबसे ना एक अच्छी तरह से pleasant language में बात कर रहे हैं. देन रादर देन पनिशिंग, हमें एनकरेजमेंट्स पे फोकस करना चाहिए. बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, उसको पनिश करने की जगह उनको एनकरेज कीजिए होमवर्क करने के लिए. फाइंड वेज जिससे बच्चे होमवर्क में इन्वेस्ट हो, जिससे उनको इंटरेस्ट आए होमवर्क्स में. सो फॉर इंस्टेंस, आपके बच्चे का एक असाइनमेंट है या एक प्रोजेक्ट है जो उसको इस वीकेंड, मतलब मान लो इस वीकेंड पे खत्म करना है, सैटरडे संडे है, द चाइल्ड हैज टू सबमिट इट ऑन मंडे. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज इस पॉइंट पे कि आप रादर देन पनिश करना, कि आपने बच्चे को बार बार बोला करो करो करो, एंड संडे आ गया एंड बच्चे ने सैटरडे को हाथ नहीं लगाया होमवर्क को, रादर देन उनको गुस्सा करना, अब तुम खेलने ही नहीं जाओगे बिकॉज यू डिडंट डू योर होमवर्क. एनकरेज देम. आप उनको कुछ ऐसी रेनफोर्समेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको लगे कि हाँ मैं होमवर्क करूंगा तो मेरा फायदा है. बिकॉज बच्चे ना बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा इसमें, कि इज देयर समथिंग इन इट फॉर मी. सो हैविंग दैट फीलिंग, तो आप उनको छोटी छोटी चीजें रेनफोर्समेंट दे सकते हैं कि बेटा, इफ यू व्हेन यू फिनिश योर होमवर्क यू विल गेट अ चॉकलेट, या व्हेन यू विल फिनिश योर होमवर्क वी वर प्लानिंग कि हम ना पार्क में घूमने चलेंगे या फिर बैडमिंटन खेलने चलेंगे साथ में, या वी कुड गो आउट एंड प्ले क्रिकेट, एनीथिंग लाइक दैट. तो आई थिंक समथिंग लाइक दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन, and it becomes easier for parents also to deal with these issues, because जब आप punishment देंगे बच्चे tantrums throw करेंगे, वो गुस्सा करेंगे, and then again वो parents के लिए भी difficult हो जाएगा and बच्चे के लिए भी. Welcome Sunita ma'am, thank you for sharing about you, thank you so much for the introduction. Yes, so moving ahead, it's important कि हम अपने बच्चों के साथ clear rules and boundaries set up करें, because obviously बच्चे सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, and that's not always possible, right? कई बार ऐसी चीजें होंगी that they would want to do that parents are not comfortable with. So it's very important कि हम boundaries and rules set करें घर में, but they should not be very strict and not be very stringent, कि जहाँ पे बच्चों को लगता है मैं फंस गई हूँ यहाँ पे or something like that. They should be something that children are comfortable with. अगर आपके घर पे रूल है कि रात को 8 बजे तक everybody should be back home, वो clearly stated होना चाहिए, everybody should understand that, everybody should abide by that. सबको वो follow करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए एक बच्चे के लिए एक रूल है, एक बच्चे के लिए अलग रूल है. सबके लिए सिमिलर रूल्स होने चाहिए, एंड वो बहुत प्यार से बच्चों को समझाए जाने चाहिए, गुस्से से नहीं कि जो बोला है वो करो, बट इट शुड बी समथिंग लाइक
बेटा ऐसे ऐसे है, एंड यू कैन ऑलवेज एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई यू हैव दिस रूल इन प्लेस. बेटा वी डोंट फील आफ्टर 8 इट्स सेफ फॉर यू टू बी आउटसाइड. वी हैव डिनर एट 8:30 और 9, सो वी वांट एवरीबडी बैक होम बाय 8. आप उनको प्यार से समझाइए एंड ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. आपने अगर आज एक चीज के लिए अपने बच्चे को प्रेज किया है, तो कल उस चीज के लिए उनको डांटना नहीं है. अगर आपने एक चीज के लिए डांटा है, तो कल उस चीज के लिए उसको इग्नोर नहीं करना या तारीफ नहीं करनी है. सो जो चीज आप एक बार कर रहे हैं, बी कंसिस्टेंट विद इट. आपने बच्चे को कोई प्रॉमिस किया है दैट टुडे आई विल टेक यू टू द पार्क, फॉलो दैट. अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीजन से, समथिंग अर्जेंट कम्स अप, बिकॉज पेरेंट्स की लाइफ खुद की लाइफ भी इतनी बिजी होती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, कोई रिलेटिव या गेस्ट आ सकता है घर पे, एनीथिंग कैन हैपन, राइट. बट अगर ऐसा कुछ होता है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट आप उनको एक्सप्लेन कीजिए व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस डिड नॉट हैपन, एंड देन अगेन उनको प्रॉमिस कीजिए नेक्स्ट टाइम वी आर डूइंग दिस. उससे क्या होता है, बच्चों को लगता है यस माय पेरेंट्स डोंट लाई टू मी, माय पेरेंट्स फॉलो थ्रू, जो उन्होंने बोला है वो करेंगे. एंड माय पेरेंट्स आर कम्युनिकेटिंग विद मी, मुझसे कोई बात छुपा नहीं रहे हैं, मुझे सब एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुझे इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट. सो आई वुड लाइक टू आस्क एनी ऑफ यू, आपको कुछ इन प्रिंसिपल से समझ आया, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड, कि ये प्रिंसिपल्स हो सकते हैं पॉजिटिव पेरेंटिंग के, या एनीथिंग कि आप इनमें से कुछ फॉलो करते हैं ऑलरेडी अपने घर पे, या समथिंग दैट यू फील माइट हेल्प यू, एनीथिंग. विजय सर, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? Manju ma'am, how about you? Would you like to add anything, say anything to this? Gurmeet ma'am, how about you? हाँ, जो सॉरी, Ma'am, you're on mute. ओके, अ, ये जो आपने पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स बताए हैं, मैं फ़ॉलो करती हूँ इनमें से कुछ, और मेरे को इससे थोड़ा फ़र्क नज़र भी आता है कि जैसे हम जो भी जैसे बच्चों के साथ जैसे हम रिस्पेक्टफुली बात करते हैं या उनकी बात जब सुनते हैं, कम्युनिकेशन जब दोनों तरफ से एक जैसी होती है, तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छी होती है। ए, बच्चे भी इस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, हम भी एप्रिशिएट करते हैं कि चलो इससे एक तो घर का एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है इससे। Yes, yes, absolutely. You're absolutely right, ma'am. ये सब principles, देखो ये principles ऐसा नहीं है that they work like a magic wand कि आपने आज शुरू किया and within 2 days you will see differences. हुँ, But these are long term and consistent things. जब आप एक young age से बच्चों के साथ ये सब चीजें follow करते हैं, they learn these things and they adapt these things. उनको ये सब चीजें ऐसा नहीं लगता कि नहीं कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स अचानक से कुछ, एंड वो भी अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को, एंड ओवर टाइम वो यही सीखते हैं एंड आगे जाके इन्हीं प्रिंसिपल्स पे खुद भी वर्क करते हैं, राइट. ओके, सो हमने प्रिंसिपल्स की तो बात कर ली. नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई दीज प्रिंसिपल्स वर्क, व्हाई पॉजिटिव पेरेंटिंग एक्चुअली वर्क्स विद चिल्ड्रन. First is very important that it helps build a stronger relationship between the parents and children. Because what happens is when you show them respect, love, care, when you show them that they matter, their opinions, their perspectives, all of these things matter. They feel heard and seen in their own family. उससे क्या होता है, they feel more comfortable with their parents and they are more likely to open up with their parents, उनसे बातें share करेंगे, and it helps strengthen the bond that they share, right. एट द सेम टाइम बच्चे जब यंग होते हैं, छोटी एज से ही व्हेन दे आर इन्वॉल्वड इन डिसीजन मेकिंग, जैसे छोटी छोटी चीजों में, जैसे बेटा व्हाट डू यू वांट फॉर योर लंच बॉक्स टुमारो, डू यू वांट, लाइक आई सेड, यू वांट लाइक आपको आलू की सब्जी चाहिए, और डू यू वांट कैरेट्स. Obviously children would definitely prefer aloo ki sabzi, right? So give them the option, do you want aloo today or tomorrow, and the other day you'll get carrots. आप उनको ऑप्शंस दे सकते हैं जिनमें वो चूज कर सकते हैं. वो ऑप्शंस विल बी योर थिंग कि आप उनको कैसे देना चाहते हैं, और वो चॉइस उनकी होगी. उनको लगता है यस, मैं अपने डिसीजंस खुद ले रही हूँ. सो उससे क्या होता है, दे बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, उनकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होती है. दे आर नो लॉन्गर completely reliant on their parents या डिपेंडेंट ऑन their parents कि जो पेरेंट्स ने बोला वैसे होगा. दे बिकम मोर सेंसिबल और अपने डिसीजंस खुद लेने की वो हिम्मत रखते हैं, राइट. उसके बाद जब बच्चे इस सब प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, घर में आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स कम हो जाती हैं, बिकॉज एवरीबडी इज गिविंग देयर ओपिनियन.
एंड सबको पता है, सबका ओपिनियन लिया जा रहा है, सबका ओपिनियन समझा जा रहा है, सबकी बातों को वैल्यू दी जा रही है, एंड फिर उसके बाद डिसीजन लिया जा रहा है। तो घर में कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, पावर स्ट्रगल्स भी कम होते हैं, वेयर चिल्ड्रन आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद देयर सिबलिंग्स एंड विद देयर पेरेंट्स की इस चीज में मेरी मर्जी चलेगी, ये मेरे लाइफ का डिसीजन है, आई विल बी द वन टेकिंग इट। ऐसी आर्ग्यूमेंट्स, ऐसी डिसएग्रीमेंट्स कम हो जाती हैं, राइट। देन इमोशनल रेगुलेशन भी बच्चों में काफी ज्यादा देखा जाता है, बढ़ जाता है। नाउ दिस हैपेंस बिकॉज when they feel comfortable in a space जहाँ पे they can share anything, what happens is they are comfortable enough कि they can share anything, they can feel anything, अपने सारे emotions वो feel कर सकते हैं, they don't have to hide away those emotions। बिकॉज जिन घरों में बच्चे डोंट फील, जिन घरों में अगर बच्चा किसी बात से अपसेट है और उनको बार बार डांटा जाता है कि इसमें अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है, अपना मूड ठीक करो, सबका मूड खराब कर रहे हो तुम, जहाँ पे ऐसी चीजें बोली जाती हैं, चिल्ड्रन बिकम फियरफुल ऑफ शेयरिंग देयर इमोशंस। ऑन द अदर हैंड, जिन घरों में अगर बच्चा अपसेट है, एवरीबडी इज कंसर्न्ड, एवरीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, दे वांट टू हियर अबाउट इट, एंड दे वांट टू हेल्प द चाइल्ड आउट, and just want to be there for the child, उन घरों में बच्चे feel more comfortable sharing their emotions and expressing themselves। So a child in house number 2, जहाँ पे पेरेंट्स सुन रहे हैं, जहाँ पे पेरेंट्स समझ रहे हैं और उसको मोटिवेट करें, एनकरेज करें, हाँ बेटा बोलो क्या हुआ, वहां पे बच्चे अपने इमोशन से बेटर डील कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू हाउस नंबर 1 जहाँ पे बच्चे उन इमोशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन दैट अगर मैं बोलूंगी तो मेरे पेरेंट्स गुस्सा ही कर देंगे, डांट ही देंगे, या मेरी फीलिंग्स को समझेंगे ही नहीं। तो इमोशन रेगुलेशन वहां पे हो नहीं पाती है अच्छे से। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, children who are brought up with long term with positive parenting strategies, long term जिनके घरों में यूज होती है, most of the research shows that these children develop long term resilience and confidence, not just in themselves, but their relationships as well. Not just with their parents, but overall, वो जो relationships form करते हैं, फिर चाहे वो उनके siblings के साथ हैं, चाहे वो उनके friends के साथ है, या फिर after a certain age in life, वो other relationships हैं, कुछ भी हैं, they feel more comfortable in those relationships, and they have better communication skills as well, because they learned that from their parents itself. Now, a very important and interesting topic are common parenting challenges. And I think almost all the parents here would agree with me कि ये कुछ ऐसे challenges हैं जो हर घर में देखे जाते हैं, हर घर में you feel these challenges, no matter आपका बच्चा किस age group को belong करता है, they could be a toddler, they could be like in high school, or they could be college going or even working for that matter. These are the things जो हर बच्चे करते हैं, and सारे parents ये problems face करते हैं। So the first one is the children not listening. ये होता है, पेरेंट्स ऑफन कंप्लेन दैट माय चाइल्ड डजंट लिसन टू मी, मैं बोलती रहती हूँ या मैं बोलता रहता हूँ और मेरे बच्चे तो सुनते ही नहीं हैं, वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। टैंट्रम्स शो करना, एंगर इश्यूज, बिहेवियरल इश्यूज की जहाँ पे कई बार वायलेंट हो जाते हैं, सिबलिंग्स स्पेशली आपस में, देयर आर कांस्टेंट सिबलिंग फाइट्स एंड राइवलरीज, जहाँ पे देयर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग वन अनदर, लाइक देमसेल्व्स टू वन अनदर, कि आपने भैया का ये काम किया, मेरा क्यों नहीं किया, भैया को ज्यादा प्यार करते हो, दीदी को ज्यादा प्यार करते हो, these things। ये especially when siblings are closer together in age, ये problems बहुत often देखी जाती है। there's a lot of academic pressure, and academic pressure सुन के लगता है कि बच्चों पे academic pressure है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे तो है ही है, बट पेरेंट्स पे उससे भी ज्यादा है, बिकॉज पेरेंट्स के पास अपना भी इतना काम है करने को, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट दे हैव टू फोकस ऑन द चाइल्ड्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, उनको बच्चों को पढ़ाना है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू वुड अग्री दैट एकेडमिक्स चेंज होते रहते हैं ओवर टाइम। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट पढ़ाई अलग थी, व्हेन माय मदर वाज अ स्टूडेंट पढ़ाई अलग थी, and now when the next generation is going to school, पढ़ाई बहुत अलग है। So keeping up with those changes in academics, क्या हो रहा है, क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, देन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, देन बच्चे पढ़ाई में ठीक से कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, विद इंक्रीजिंग कंपटीशन कॉलेज के एडमिशन्स के, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, पेरेंट्स पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उनके बच्चों के एकेडमिक्स का। एंड देन वन थिंग जो आजकल बहुत कॉमन है इज हाई स्क्रीन टाइम। as soon as we get our phones, and not even phones, just televisions, laptops, computers, tablets, all of these things, in सब की वजह से screen time बहुत high है बच्चों का। And these are some of the very few challenges that parents feel and face on a very daily basis, right?
Anybody would like to add like इन challenges का या इनसे ज़्यादा इसके अलावा कोई challenges that you may be facing या anything that you have done to deal with these challenges or anything anybody would like to share just briefly. आई थिंक Manju ma'am, would you? Yes, Kunmi ma'am, go ahead. आई थिंक हर फैमिली में ने ये जो चैलेंजेस है कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, ये नॉर्मल है, हर फैमिली में नॉर्मल है, जो कि देखने में इतना सिंपल लगता है लेकिन है नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। Yes ma'am, you're absolutely right. ये सब लगता है डेली की चीजें हैं, there's nothing new, ये तो हर घर की कहानी है. But it takes a huge toll on parents, especially the parent who is dealing with this 24/7. If one of the parent is a homemaker, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है ये सब मैनेज करने की, ये सब डील करने की. Even if they are working, काम के साथ साथ ये सब मैनेज करना, and they seem very normal and regular daily life challenges, but these are actually very important, and parents के ऊपर काफी बड़ा impact होता है इन सब का. So now that we have, anybody else would like to add anything, like any challenges that you have faced other than these, or even these for that matter? Okay, so now that we have discussed the parenting challenges, so now I would like to move on to the solutions या strategies जिनसे हम इन problem से deal कर सकते हैं. And these are very simple strategies, बहुत simple है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए आपको कुछ बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है. And you can just employ these in your daily life. So first one जैसे हमने discuss किया था कि बच्चे सुनते नहीं है हमारी बातें. हम ऐसी problem से हम deal करने के लिए क्या करेंगे? We will use when then strategy instead of if strategy. इसका क्या मतलब होता है? बच्चों को धमकी देना या उनको थ्रेटन करना, अगर तुमने ये नहीं किया तो हम ये करेंगे, अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो तुम खेलने नहीं जा सकते, अगर तुम आज सुबह उठ के नहाए नहीं टाइम पे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा. rather than using this threatening tone, जबकि ultimately purpose वही है कि बच्चा अपना काम कर ले, but this tone sounds threatening to the child कि धमकी दे रहे हैं. And over time the children become so much conditioned to this threatening tone कि कई बार बच्चे ना उसको रिटेलिएट करते हैं ना, आगे से बदतमीजी भी करने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, अगर नहीं नहाना मुझे, मैं खाऊंगी भी नहीं, दैट्स ओके विथ मी. नहीं खेलने जाने दोगे ना, होमवर्क नहीं किया, इट्स ओके, मेरे को नहीं खेलने जाना. These things come very often. तो इनसे डील करने के लिए rather than using that threatening tone, what should we do? We should use the when then strategy. या फिर अगर हम हिंदी में बोलेंगे जब and तब. जैसे आप अपने बच्चों को अगर होमवर्क कराना है और कहना है कि खेलने जाने से पहले होमवर्क करो. How can we say that? Rather than saying अगर होमवर्क करोगे तो खेलने जाओगे, we'll say बेटा जब आप अपना होमवर्क कर लोगे तब आप खेलने जा सकते हो. Now this doesn't sound threatening. दिस इज टेलिंग द चाइल्ड जो भी आपको बोलना था, आपने बताना था कि खेलने जाने से पहले होमवर्क खत्म करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास. इसमें वो ऑप्शन भी नहीं मिली इन्हें, आपने अपनी बात भी पूरी कर दी, एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट थ्रेटनिंग टू देम. बेटा आप जब नहा लोगे तो खाना आपको साथ ही साथ मिल जाएगा, लेट नहीं करूंगी मैं, गरम गरम खाना मिल जाएगा आपके नहा के आते ही, जैसे आप बैठोगे टेबल पे, आप जैसे भी है. तो दीज टोन्स, यूजिंग दीज वर्ड्स हेल्प्स. कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनको थ्रेटन मत कीजिए, उसकी जगह उनको प्यार से बोलिए बेटा जब आपका होमवर्क हो जाएगा तब आपको डिनर मिल जाएगा, मुझे बस आवाज दे देना, जैसे ही होमवर्क फिनिश हो जस्ट कॉल मी आउट, आई गिव यू योर डिनर. थिंग्स लाइक दीज. देन ऑफरिंग देम लिमिटेड चॉइसेस. इसका क्या मतलब है कि आप अपने बच्चों को ऑप्शंस दीजिए, बट दोज ऑप्शंस शुड ऑलवेज भी जो आप चाहते हैं. लाइक मैंने भी प्रीवियसली एक एग्जांपल यूज किया था, बेटा डू यू वांट पोटैटोज और कैरेट फॉर योर लंच बॉक्स. These are two things that you want to give them, right? आप उनको पोटैटोज की ऑप्शन दे रहे हैं, कैरेट की ऑप्शन दे रहे हैं. अगर आप बच्चों को ओपन ऑप्शन दे देंगे, व्हाट डू यू वांट फॉर योर लंच बॉक्स, दे माइट कम अप एंड से मुझे सैंडविच चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए. दे विल गिव यू लिस्ट ऑफ 100 थिंग्स दैट यू माइट नॉट वांट टू गिव देम, राइट? तो एज पेरेंट्स आप उनको ऑप्शन भी देना चाहते हैं, बिकॉज अगेन दैट्स अ पॉजिटिव पेरेंटिंग स्ट्रैटेजी कि आप अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट? तो हम किस तरह से दोनों चीजों को कंबाइन करेंगे दैट इट बिकम्स इजियर फॉर पेरेंट्स. ऑप्शंस देंगे बट लिमिटेड देंगे. बेटा कैरेट आज लेके जानी है या कल? आस्क क्वेश्चंस लाइक दैट. बेटा कौन सा पराठा लेके जाओगे, आलू का लेके जाओगे या फिर गोभी का लेके जाओगे,
give options like these that are convenient for you as well and for the child as well. For another example, आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि होमवर्क से रिलेटेड कि आपको होमवर्क बेटा अभी करना है या खेलना आके करना है. If your child says कि खेलना आके करना है, which is something that most of the children will choose, कि उनको पहले खेलना है and then they would want to do their homeworks, right? तो agree with them. उन्होंने जो बोला है, never say कि नहीं नहीं अभी करो, because you gave them a choice, right? So, acknowledge that choice, agree करिए उनके साथ, ठीक है बेटा, go and play for 1 hour, come back, do your homework, and जब आप homework कर लोगे, तब आपको dinner मिल जाएगा. So, वो using all of these, combining them helps, combining these strategies. Now, आप काफी पेरेंट्स ये बोलेंगे कि खेल के आए मेरे बच्चे एंड देन दे डिड नॉट डू देयर होमवर्क. उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जिद करके खाना खाने बैठ गए वो, एंड देन उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया और अगले दिन होमवर्क सबमिट करना था, हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया. सो ऐसी सिचुएशन में इट बिकम्स वेरी, इट बिकम्स एपरेंट. आप क्या करेंगे? आपको पनिश करना पड़ेगा अपने बच्चों को ये समझने के लिए कि उन्होंने जो किया दैट इज रॉन्ग, राइट? बट rather than punishing, positive parenting says हम उनको consequences feel कराएंगे अपनी प्रॉब्लम के, जो उन्होंने गलती की है, जो भी मिस्टेक्स की हैं, उनकी consequences feel कराएंगे rather than giving them harsh punishments. Like I mentioned, harsh punishments पे हम नहीं जाएंगे, हम गाइड करेंगे. Now, if the homework has to be submitted the next day and बच्चे ने अब डिनर कर लिया and it's already past their bed time, अब क्या करे? बच्चा सोने चला गया, what will you do now? You can either give them harsh punishment कि कल तुम खेलने नहीं जाओगे, तुम्हारा टीवी बंद है 1 हफ्ते के लिए, अब तुम जब तक होमवर्क नहीं करोगे खेलने नहीं जाओगे, and all of these things. But a calm consequence would be, अगले दिन आपका बच्चे को, मान लो the child gets up at 7 to get ready for school, alright? तो हम क्या करेंगे? बच्चे को सुबह 6 बजे उठाएंगे. चलो बेटा, you did not do your homework yesterday, but you need to submit this today, you have to do that. So now we're going to sit and do your homework. आप अपना होमवर्क करोगे, then only you will be able to go to school. जब आप अपना होमवर्क करोगे, तब आप स्कूल जाओगे. उस बच्चे को इससे ये भी पता चल जाएगा that my parents were strict about me finishing homework जिस दिन सबमिट करना है. They are not okay कि मैं स्कूल बिना होमवर्क के जाऊं. एट द सेम टाइम उन्होंने मुझे ऑप्शन दी थी, मैंने कल ही कर लिया होता तो सुबह आराम से उठता, जल्दी नहीं उठाते, मुझे सुबह सुबह होमवर्क नहीं करना पड़ता. ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इससे क्या होगा? बच्चा नेक्स्ट टाइम, व्हेन यू अगेन गिव देम एन ऑप्शन, बेटा अभी करना है खेलना है आके, बच्चा कहेगा खेलना आके. एंड देन व्हेन द चाइल्ड कम्स होम, उसको याद आएगा कि पिछली बार यार मुझे सुबह जल्दी जल्दी उठा के पेरेंट्स ने होमवर्क करा दिया था, सो इट्स बेटर कि अभी कर लेती हूँ, वरना कल फिर सुबह जल्दी उठना पड़ेगा टाइम से. So, things like these. आप calm consequences पे फोकस कीजिए rather than giving them harsh punishments, जहाँ पे बच्चे कुछ सीख नहीं रहे हैं, उनकी गलती भी नहीं सुधर रही है, and they're not learning anything. And next, we need to validate their emotions. If your child is upset about something, let them be upset. Tell them, yes, beta, I can see you're upset about it. It's very understandable. आप इस बात से बहुत upset हो, आपकी लड़ाई हो गई, आपको मैम ने क्लास में डांट दिया, upset तो होगे ही. बट ऑल्सो पॉइंट देम आउट टू द सिचुएशन कि बेटा देखो मैम ने डांट दिया, बिल्कुल अपसेट तो होगे ही, आपको पूरी क्लास के सामने आपको एम्बैरेसिंग भी फील हुआ होगा, बट यू शुड हैव डन योर होमवर्क. आपने होमवर्क कर लिया होता तो ऐसे नहीं होता. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम होमवर्क पे फोकस करेंगे. नेवर से कि तुमने होमवर्क कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता. नो मैटर हाउ मच यू वांट टू से दिस, स्टार्ट विद द फैक्ट कि बिल्कुल बुरा लगना बिल्कुल नॉर्मल है. आपको रोना आ रहा है, क्यों नहीं आया? आपके मैम ने इतना जोर से डांट दिया क्लास में और किसी को नहीं डांटा, सिर्फ आपको डांटा. कोई बात नहीं बेटा, आगे से फिर होमवर्क पूरा कर लेंगे हम टाइम से, ताकि ऐसी सिचुएशन ही ना आए. डिस्ट्रैक्ट देम फ्रॉम द फैक्ट कि जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है. नाउ वी नीड टू फोकस ऑन द फ्यूचर. तो पास्ट से डिस्ट्रैक्ट करके फ्यूचर ओरिएंटेड हम उनको लेके आएंगे एंड एट द सेम टाइम वैलिडेट करेंगे उनकी फीलिंग, क्योंकि हाँ, आप जो फील कर रहे हो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल वैलिड है. ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती फील कर रहे हो या एक्टिंग कर रहे हो. डोंट से थिंग्स लाइक दैट. एंड उनको कोई भी काम कराने के लिए वी कैन ऑलवेज यूज पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स. जैसे मैंने बोला था, आप उनको चॉकलेट दे सकते हैं, उनकी पसंद का कुछ खिला सकते हैं. अगर फॉर लेट्स इंस्टेंस से आपके बच्चे ने 1 हफ्ते तक अपना होमवर्क टाइम से किया या पढ़ाई अच्छे से की, वेरी सिंपली यू कैन से दीज थिंग्स की, यू कैन प्रेज देम. डिनर टेबल पे सब बैठ रहे हैं, आज आपके बच्चे ने होमवर्क अच्छे से किया. dinner time, just say this, that today Ankit did his homework on time and उसने काफी अच्छे से किया था, in very nice and neat handwriting. assignment सारी पूरी हो गई, before the exam he is well prepared. appreciate them. छोटी छोटी तारीफ कर सकते हैं डिनर टाइम पे सबके सामने.
एंड यू नो आप बार बार करिए कि अगर उन्होंने हफ्ते में 3 बार ऐसा किया, तीनों बार उनकी तारीफ कीजिए. व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस इज द चाइल्ड वुड फील लव्ड, द चाइल्ड वुड फील सीन एंड हर्ड कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इवन इफ आई एम वर्किंग मेरे पेरेंट्स का ध्यान नहीं है इस सब पे. दे आर लुकिंग एट दैट, दे आर अंडरस्टैंडिंग कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, दे आर अप्रिशिएटिंग मी. So these strategies are very simple. They may seem like ये तो रोज की बात है, इसमें कौन सा कुछ बड़ा है. But these simple strategies can go a long way because it helps your child understand that you love and care for them, and you only want them to succeed. So ultimately ये strategies आपको help करती है आपका relationship भी better करने में, and at the same time आपके बच्चे को ऐसा feel कराने में that you are always with them and you'll always be by their side. Now, I would like to ask anybody would like to add anything to this? Any strategies that you have used? या इसके अलावा कुछ that you've used and you think has worked out for you? I'm pretty sure other parents भी benefit करेंगे आपके input से. Manju ma'am, would you like to add anything? Vijay sir, how about you? Would you like to add anything? कुछ भी मतलब आपने कुछ use किया है या you learned something from these strategies? Do you have any questions regarding these? Gurmeet ma'am? नहीं, ये जो स्ट्रेटजीज हैं बिल्कुल सही है कि इन स्ट्रेटजीज के थ्रू हम अपने बच्चों के साथ अच्छी तरह से डील कर सकते हैं. Yes, ma'am. Okay. So moving ahead, मैं बार बार mention करती हूँ communicating with your child. Communication उनको सिखाइए, खुद सीखिए. Why? Because communication, very honestly, having a positive communication style is the core of positive parenting, and in fact anything for that matter. कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा काम आती है. एंड कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ खुद बोलना नहीं होता है. कम्युनिकेशन का मतलब ऑल्सो इन्वॉल्व्स एक्टिवली लिसनिंग टू द अदर पर्सन. वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या समझ रहे हैं. All of these things become very important because when you focus on the other person as well, सामने वाले पर्सन को भी लगता है yes they care about me, they care about what am I saying, what am I feeling, and all of these things. Then rather than blaming them for anything wrong or any mistakes that your child may have done, use I statements. Now I statements का मतलब यहाँ पे क्या होता है? There's a difference in between blaming statements and I statements. Blaming statements would be I told you so, मैंने तो कहा ही था. But I statements would be expressing your feelings. That beta I am saying this because I am worried about you. इससे क्या होता है? The child knows that you are saying this because you are worried. आपने उनको डांट दिया मान लीजिए. उसके बाद उनको ये कहना आपने उनको डांट दिया कि तुम्हारा देखो कितने खराब मार्क्स आए हैं मैथ्स में, तुम पढ़ते लिखते नहीं हो. तो आपने गुस्से में ये बात बोल दी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अवॉइड सेइंग दीज थिंग्स, बट देन बाय चांस आपने बोल दी. नाउ रादर देन ब्लेमिंग देम कि मैं तो इसीलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि तुम पढ़ लिख नहीं रहे हो, तुम पढ़ाई कर लो, तो मेरे को जरूरत ही क्या पड़े इतना बोलने की, ये सब करने की, तुम्हें डांटने की या इतना सब अपनी सर खपाई करने की जरूरत ही क्या पड़े मुझे ये सब करने की. रादर देन सेइंग दिस, वी विल से समथिंग लाइक बेटा आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैं वरीड हूँ कि अगर तुम्हारे इस बार मार्क्स नहीं आए, they will hold you back. आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे. I am worried about your safety. I am worried about your academics. I am worried about your progression and success. I don't want you to hurt yourself because of this. मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स कम आए उस वजह से आप अपने ऊपर बात ले लो, आप हर्ट हो. Using these things, इससे क्या होगा, आपका इंटेंट एंड आपकी फीलिंग बच्चा समझ जाएगा. Now in our very first webinar, we discussed about कि हमें किस तरह से बच्चों के साथ we statements use करनी चाहिए rather than you and I. You and I statements जो उस sense में थी, they were like I told you what you need to do, you are at fault, which were blaming statements. And मैंने जो कहा था कि हमें उसकी जगह we statements use करनी चाहिए कि what we need to do, हमें क्या करना चाहिए. जब हम we जैसा word use करते हैं तो उसमें या वी हम अस ऐसी बातें यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में, उससे क्या होता है बच्चों को पता चलता है दैट पेरेंट्स मुझे अकेले नहीं छोड़ रहे हैं. दे आर इंक्लूडिंग मी इन विद इन देमसेल्व्स. तो हम एक होके प्रॉब्लम से डील करें. वी आर टुगेदर इन द प्रॉब्लम. ऐसा नहीं है कि माय पेरेंट्स आर हियर, आई एम हियर एंड हम एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है. वी आर टुगेदर अगेंस्ट द प्रॉब्लम, राइट. एंड यहाँ पे जो आई स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर स्टेटमेंट्स जो अपनी फीलिंग्स बच्चे को एक्सप्रेस कर रही है.
ताकि बच्चा आपकी बात समझे एंड उसके बाद वो अपनी बात भी आपको कहे। आपने कहा बेटा आई एम वरिड दैट यू विल फेल दिस क्लास, and the child will come, mama I try my best, because when you explain yourself the child will explain themselves, वो अपनी बातें भी explain करेंगे आपको। उससे क्या होगा, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी, एक प्रॉपर कॉन्वर्जेशन होगी, जिसमें आप सारी बातें एक दूसरे से क्लियर कर सकते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू। वी नीड टू एनकरेज ओपन कॉन्वर्जेशंस इन कम्युनिकेशन, जहां पे द चाइल्ड फील सेफ इनफ आपसे कोई भी बात करने में, इवन इफ इट्स देयर मिस्टेक। मम्मा आई एम सॉरी, आई नो यू आर वरिड, बट मेरी गलती है, मैंने पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं किया। When the child will see that you are worried, you care, they'll be more accepting of their mistakes, they'll be more understanding of your feelings, and they will share कि उनकी क्या problems है, उनकी क्या feelings है, all of these things. And lastly, we need to replace commands with collaboration. जैसे मैंने बोला कि rather than telling them homework करो, वी नीड टू से बेटा होमवर्क कब करना है, आपने अभी करना है या खेलने खेलने जाने के बाद आप करोगे अपना होमवर्क। इन्वॉल्व देम इन द डिसीजन मेकिंग। बेटा कितना स्क्रीन टाइम ठीक है, आपको क्या लगता है 1 घंटा टीवी देखना ठीक है या 2 घंटे देखने हैं आपने? बच्चा कहता है 2 घंटे। यू नो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज से कि बेटा 2 घंटे मुझे ज्यादा लग रहे हैं। अच्छा मम्मा फिर 1.5 बेटा 1 आवर ठीक है, हाफ आवर और 1 आवर के बीच में आप चूज कर लो। गिव देम लिमिटेड ऑप्शंस, 2 घंटे की ऑप्शन ही नहीं देनी है आपको ज्यादातर टाइम। If it's about playing, you can give 2 घंटे की option, बेटा 1 आवर प्ले करना है या 2 आवर। the child will always choose 2 hours of playing over 1 hour, right? तो आप ऑफर ही उतना कीजिए जितना जितने से आप कंफर्टेबल हैं, ताकि आपने उनको लिमिटेड ऑफर भी दे दिया, लिमिटेड ऑप्शन भी दे दिया है, जिसमें से उनको लग रहा है वाओ मैंने तो 1 घंटे से ज्यादा वाला चूज कर लिया। उनको लग रहा है अरे वाह मेरे पेरेंट्स मान भी गए, जब 1 घंटे और 2 घंटे में ऑप्शन थी, वो 1 घंटा प्रेफर करते पर मैंने 2 घंटा बोला, वो मान भी गए। And 2 hours was actually something जिससे आप भी comfortable थे। So having a balance and managing that, say something that you are comfortable with, and जो आपके बच्चे को भी लगे कि वाओ। सो जब क्या होगा, वो भी कोलैबोरेट करेंगे ना पूरी सिचुएशन में, पूरी कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में। दे विल अगेन फील हर्ड, they'll feel independent, and उनको भी लगेगा yes my parents care and value about what I am saying, so they'll be more likely to agree with you. And once in a while अगर कभी ऐसा हो भी गया ना that you don't agree with them, so if you have agreed with them 10 times and you have disagreed with them once, उनको लगेगा यार थोड़ा सा बुरा लगेगा, but then after that they'll be like यार but my parents do agree with me most of the times, पिछले 10 बार तो वो मेरी बात मान ही रहे थे ना। सो अगर एक बार नहीं भी मानी, बुरा लगा, बट ठीक है यार चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। कि बाकी मान लिया, ये वाली बात नहीं भी मानी, आई कैन डील विद दैट, इतना चलता है। सो थिंग्स लाइक दैट। नाउ ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड सम पीपल माइट थिंक कि एजुकेटर्स का रोल कहाँ से आ गया व्हेन इट्स पॉजिटिव पेरेंटिंग, एंड दैट्स समथिंग दैट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन राइट नाउ। So first let's try to focus on parents and then we'll move on to educators. So as parents हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों को वो बिहेवियर शो करना जो हम चाहते हैं वो करे। इफ आई वॉन्ट मेरा बच्चा ज्यादा टीवी पे टाइम ना स्पेंड करे या स्क्रीन टाइम उसका कम हो, एज अ पेरेंट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर मैं भी स्क्रीन टाइम अपना कम करूं, मैं भी मोबाइल फोन पे ज्यादा टाइम ना इन्वेस्ट करूं। या जैसा मैंने बोला, द वे वी कम्युनिकेट विद वन अनदर एंड विद आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चे भी वो देखेंगे एंड दे वुड ऑल्सो फॉलो दैट। सो इफ आई एम यूजिंग अब्यूसिव लैंग्वेज while टॉकिंग विद माई हस्बैंड या फिर विद माई पेरेंट्स और माई इन लॉज, if I am using that language with them, the child will see that and the child will think it's okay to talk to your parents like that. या फिर it's okay to talk to any elder like that. So today if I have a fight with my mother and my daughter is right here with me, and मैं अपनी मदर पे चिल्ला के बात कर रही हूँ, उनसे कह रही हूँ आपको कुछ नहीं आता है, आप चुपचाप बैठ जाओ, my child will ultimately think it's okay to talk to your parents like that. अगर आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ रहे हैं या वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से, it's normal to say these things to your parents. And ultimately when my daughter grows up, वो भी मुझसे ऐसे बात करेगी. So it's important to behave in a manner that you feel your children should learn. Then you need to stay calm at all times. Even काफी बार होता है बच्चे चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, and उससे पेरेंट्स भी चिढ़ जाते हैं. But it's very important to stay calm and relaxed. I know it's very difficult,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन यू स्टे काम, आपका बच्चा देखेगा दैट मैं चिल्ला रही हूँ, मम्मी पापा शांत हैं, वो गुस्सा नहीं कर रहे, उनको गिल्टी फील होगा चिल्ला के, दिल अगेन ऑटोमेटिकली काम डाउन, वो खुद अपनी वॉइस कम कर लेंगे, अपनी वॉल्यूम कम कर लेंगे, दैट नहीं नहीं मेरे को भी आराम से बात करनी पड़ेगी, मम्मी पापा आराम से बात कर रहे हैं तो मैं कैसे चिल्ला सकती हूँ, थिंग्स लाइक दैट। देन यू नीड टू बैलेंस डिसिप्लिन विद एम्पैथी। आप जब उनको कोई भी डिसिप्लिन सिखा रहे हैं दैट होम बाय 8, show empathy as well. Acha beta, you need to go out. Your party starts at 7 and you can't be home by 8. Sometimes tweaking those rules and boundaries, show them empathy, show them that you care. Empathy का मतलब सिर्फ इतना है that you try to understand their feelings as well. So अगर उनको लग रहा है कि मम्मी 7 बजे तो पार्टी शुरू है, 8 बजे मैं घर आ जाऊंगी, I'll have to leave by 7:30, मैं enjoy कैसे करूंगी? Sometimes उनकी बात समझने के लिए, उनको अपना शो करने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए दैट यू एक्चुअली केयर अबाउट देम एंड यू आर मेकिंग डिसीजंस फॉर देम, आप उनको दिखा दो क्या है बेटा, ठीक है चलो ऐसा है, इस बार तुम्हारा एक्सटेंड कर दिया, 8 to 9:30 कर दिया, ताकि तुम 2 घंटे पार्टी इंजॉय कर लो, यू लीव फ्रॉम द पार्टी एट 9, यूल बी बैक होम बाय 9:30, वंस इन अ वाइल शो देम दैट कि कभी कभी ये सब भी होगा। उससे क्या होगा, बच्चे विल अंडरस्टैंड दैट माई पेरेंट्स आर नॉट वेरी स्ट्रिक्ट, वो मेरी लाइफ कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो मुझे बस सही सिखाते हैं, एंड वंस इन अ वाइल व्हेन मेरे को इधर उधर जाने की जरूरत है या कुछ भी है, वो अग्री भी करते हैं उन बातों से। एंड लास्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज इन सेल्फ केयर एज पेरेंट्स, बिकॉज द पेरेंट्स जो सेल्फ केयर में एंगेज नहीं करते, ध्यान नहीं रखते हैं, सेल्फ केयर इज एनीथिंग विच मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, it can be different for different people, but anything literally that involves taking care of yourself, because जो पेरेंट्स अपना ध्यान रखते हैं, दे आर मोर रिलैक्स्ड, दे आर मोर कंफर्टेबल, वो शांति से अपने बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं, उनके साथ एंगेज कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, एज कम्पेयर टू दोज पेरेंट्स जो पूरा टाइम टायर्ड हैं, एग्जॉस्टेड हैं, एंड अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, तो उनके बच्चे भी फिर उस तरह से रिएक्ट करता है, बिकॉज एज पेरेंट्स वो भी उतना काम और रिलैक्स नहीं है अपने बच्चों के सामने, जिनसे आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, राइट? एज एडुकेटर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव पेरेंटिंग को टीचर्स भी अपने उसमें एम्प्लॉय करें, अपनी टीचिंग स्टाइल में। हाउ कैन दे डू दिस? रेनफोर्सिंग पॉजिटिव डिसिप्लिन इन क्लासरूम्स। इसका सीधा सीधा सा मतलब है, पॉजिटिव डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज जो है वो आप अपनी क्लासरूम में यूज कीजिए, जहाँ पे अगर लेट्स से यू कैन, आपकी क्लास में जिस बच्चे ने पूरा महीना या पूरा हफ्ता अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से रहा है, काम पूरा था, बदतमीजी नहीं की टीचर से, ऑन टाइम अटेंडेंस पूरी है, आप उन बच्चों की तारीफ कर सकते हैं। once in a while you can give them chocolates, that this week this student was always on time, काम पूरा था, सब कुछ था, here's a chocolate for you। इससे क्या होगा, उस बच्चे को अप्रिशिएटेड फील होगा, एंड द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन विल आल्सो सी यार वेरी नाइस है, जो बच्चा इतना काम बस इतनी से तो करना है, टाइम पे ही तो आना है रोज कॉलेज या क्लास में, बस इतना ही तो करना है, स्कूल टाइम पे आना है, यूनिफॉर्म सही से पहननी है, इसके लिए चॉकलेट मिल रही है, सो व्हाई नॉट? सो थिंग्स लाइक दैट टीचर्स कैन यूज, जिससे बच्चों को अप्रिशिएटेड भी फील होता है, एंड दे आर मोटिवेटेड कि वो सही से रहें अपनी क्लासेस में। Then collaborating with parents for consistency. This is very important. जिसमें parents and teachers दोनों आपस में collaborate करते हैं. Parents teachers को बताते हैं if they're facing any problem with the child at home, or if your child needs some special attention. And teachers वही same चीजें parents को बताते हैं. उससे क्या होता है, if let's say the parents have started this new thing, जहाँ पे they are not shouting or yelling in front of the child. दे कैन मेंशन दिस टू द टीचर, पीटीएम जब भी आए, आप टीचर से बहुत आराम से ये चीज मेंशन कर सकते हैं कि मैम वी आर ट्राइंग दिस, सो मे बी इफ आप इंश्योर कर सके क्लास में ऐसा ना हो, बिकॉज इट वाज अफेक्टिंग हिज मेंटल हेल्थ। सो थिंग्स लाइक दैट आप टीचर्स को ये बातें बता सकते हैं, बिकॉज व्हेन टीचर्स एंड पेरेंट्स आर बोथ इन लूप अबाउट द चिल्ड्रन, बिकॉज यंग बच्चे अपना जितना टाइम घर पे स्पेंड करते हैं उससे ज्यादा अपनी क्लासरूम में स्पेंड करते हैं, स्पेशली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, नॉट इन कॉलेजेस बट स्कूल गोइंग। तो उसमें क्या होता है, इफ टीचर्स एंड पेरेंट्स कोलैबोरेट, इफ दे आर ऑन अ गुड स्पेस, जहाँ पे दे कैन एक्चुअली शेयर बच्चे की कोई भी अचीवमेंट्स हैं या कोई भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, शेयर कर पा रहे हैं, सो बोथ ऑफ देम कैन कोलैबोरेट एंड बच्चे पे मिलके फोकस कर सकते हैं, राइट? देन अगेन एज आई मेंशन, पेरेंट्स को ये करना चाहिए, टीचर्स शुड ऑल्सो एनकरेज एफर्ट नॉट जस्ट परफॉर्मेंस। आप बच्चा मेहनत कर रहा है क्लास में, यू कैन सी इफ द स्टूडेंट गेट्स लेट्स से आउट ऑफ 30,
last time the child got 10 marks in maths and this time the child got 15. Appreciate. आप उनको ये नहीं बोलेंगे देखो अभी भी कितने कम हैं. Appreciate them. बेटा I can see you've improved from last time. Last time आपके 10 आए थे, इस बार 15 आए हैं. Good effort. Keep it up. But next time I want to see a 20 on your mark sheet. You know, things like these. आप उनको motivate भी करिए and appreciate भी कीजिए उनके effort को. And lastly, creating a safe space for them, emotionally safe space जहाँ पे they feel comfortable कि अगर स्कूल में कोई बात हुई है, they don't have to wait to go back home to tell their parents to deal with the problem. अगर कोई ऐसी severe चीज हो गई है that needs to be dealt with immediately, they can always come to their teachers. The teachers should have that safe space जहाँ पे बच्चे आके कोई भी problems share कर सकें and discuss कर सकें, right? Would anybody like to add anything to this? Anything that you related with, you felt, yes, it's right, or maybe anything you would want to add? यस, जो टीचर्स हैं इनका रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स की ज़्यादा कई बार अपने टीचर्स की सुनते हैं कि अगर Hmm. अगर मदर ने बोला है कि बेटा आप दूध पियो फॉर एग्जांपल, तो वो शायद Hmm. मना कर देंगे, लेकिन अगर टीचर क्लास में नहीं समझाएगी कि ये आपके लिए अच्छा है, ये आपको रोज पीना चाहिए, तो बच्चे उस चीज को फॉलो करते हैं। तो टीचर्स का भी उतना ही रोल है जितना कि पेरेंट्स का रोल है। मैम आपने काफी अच्छा पॉइंट सामने लाया कि कई बार होता है पेरेंट्स की वो बात नहीं सुनेंगे बट टीचर्स की सुन लेंगे. दिवाली गोइंग ऑन, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अगर पेरेंट्स जितना मर्जी अपने बच्चों को बोलते रहे दैट इतनी स्वीट्स खाना अच्छा नहीं है, इतनी स्वीट्स खाना अच्छा नहीं है, या क्रैकर्स बर्स्ट करना अच्छा नहीं है, दे विल नेवर अग्री विथ यू. बट जब उनकी टीचर्स ये चीजें उनको बताती है दैट क्रैकर्स यूज करना इज नॉट गुड, या फिर आपको ग्रीन क्रैकर्स यूज करने चाहिए, फायर क्रैकर्स, या आपको ज्यादा स्वीट्स नहीं खानी चाहिए, या यू शुड ब्रश ट्वाइस डेली, especially जो यंग बच्चे होते हैं, टीचर्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन दीज चिल्ड्रन. काफी अच्छा इम्पैक्ट होता है बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू परसुएट द चिल्ड्रन. बच्चे पेरेंट्स की उतनी नहीं सुनेंगे, जैसा मैम आपने पॉइंट आउट किया, वो अपने टीचर्स की सुन लेंगे, मम्मी पापा की उतना नहीं सुनते हैं. एंड दैट्स वेरी ट्रू. एंड दैट इज वाई एजुकेटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे दे नीड टू बैलेंस कि वो अपने स्टूडेंट्स को चीजें समझाएं और इस तरह समझाएं कि ना वो सिर्फ उनकी सुने बट एट द सेम टाइम अपने पेरेंट्स की बातें भी सुने हम्म। और उनको इक्वली रिस्पेक्ट करें. Okay, so now we are nearing the end of our session. I would just like to ask one question. हमने इतनी सारी situations discuss की, हमने इतनी सारी बातें की, सब कुछ किया. I would like all of you to think of any recent challenge जो पिछले एक हफ्ते में मान लीजिए आपने अपने बच्चों के साथ फेस किया. So now, and you dealt with that situation. But now, after learning about positive parenting, how would you respond differently to it? कि अगर आप let's say कोई भी situation है, if you guys can think of a situation जहाँ पे you can apply positive parenting का principle and just share with the rest of us anything. It can be something like homework और कुछ खाने का कि खाने के लिए बोला था उसको कि आप ये सब्जी खाओगे and the child said no. So anything like that. अगर आप में से कोई भी शेयर करना चाहे. मेरे नोन में था, रिलेशंस में, हम्म. तो जैसे उनकी बेटी ने कहा कि मेरे को, जैसे उनका ट्रिप जाता है, स्कूल ट्रिप जाता है, तो स्कूल ट्रिप जाना था, तो वो थोड़ा-सा जैसे एक्सपेंसिव था। तो पेरेंट्स शायद हम्म. इतना बजट इनके उनका नहीं था, अलाउ नहीं करता था। तो पहले तो बच्चा है उसने स्टार्टिंग ही ऐसे की है कि पेरेंट्स थोड़ा शॉक में चले गए कि ये कैसे बोल रहा है बच्चा। लेकिन हम्म. जब जब आर्गुमेंट होती है तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलता कभी भी। तो हम्म. उससे बेटर होता है कि उस समय पेरेंट्स चुप हो जाएँ, क्योंकि अगर हम्म. बच्चा नहीं समझ रहा तो पेरेंट्स चुप हो जाएँ। तो उसके बाद जब सब थोड़ा-सा बच्चा शांत होता है, थोड़ा कूल होता है, तब अगर पेरेंट्स उन्होंने समझाया, उन्हें अपना बजट बताया या अकॉर्डिंगली हमने उन्हें सिचुएशन बताई, तो बच्चे को समझ आया कि हाँ, ठीक है। जब बच्चे को खुद करने के लिए कहा ना कि आप बैठो पकड़ के पेंसिल, कॉपी और ये बजट हम्म. बनाओ अपना,
कि कितना खर्चा आएगा, कितना इसमें सारा लगेगा। तब उसको जब टोटल होके पता चला कि हाँ, इतना तो मेरे मम्मी-पापा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जब उसने हम्म। पर्सनली ये चीज़ की प्रैक्टिकली, तब बच्चे को समझ आता है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स सही कह रहे हैं। कि इससे बेटर है कि अगर हम आर्गुमेंट करें या डिस्कशन करें, तो बच्चों को कई बार प्रैक्टिकली वो चीज़ करवानी पड़ती है। That's a very good example, ma'am, that you shared over here कि किस तरह से जब पेरेंट्स खुद बता रहे थे कि नहीं हो सकता एंड एवरीथिंग इट्स डिफिकल्ट, बच्चे नहीं समझते हैं, बट व्हेन द चाइल्ड वाज इन्वॉल्व्ड कि अच्छा आप खुद करके देखो, इसी को कोलैबोरेशन कहते हैं। बच्चे को इन्वॉल्व किया उस सिचुएशन में और कहा कि अच्छा आप बताओ हमें, कैन दिस बी डन, एंड सिंस इट कुड नॉट बी डन, बच्चा खुद जब उस कंक्लूजन पे पहुंचता है ना, तो इट्स इजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट द डिसीजन इवन मोर। And if by any chance the child comes to the decision कि ये तो manageable है, कि let's say I'll just expanding upon this, पेरेंट्स से आपका 20,000 का खर्चा बैठ रहा है एंड द चाइल्ड कम्स अप एंड सेज नहीं नहीं मैं तो 10 में निपटा दूंगी, ट्रस्ट मी, आई विल मैनेज इन 10, एंड द पेरेंट्स कैन अफोर्ड 10। सो ओवर हियर द सोल्यूशन वुड बी ठीक है बेटा ये लो 10, डोंट आर्ग्यू, जैसे आपने कहा ना मैम कि आर्ग्यूमेंट करेंगे या कुछ करेंगे कोई फायदा नहीं है उसका। सो जस्ट दैट कि यहाँ पे बच्ची मान गई, बट देन देयर कुड बी सिचुएशंस जहाँ बच्चे ना माने, दे लाइक मैं 10 में कर लूंगी, आपको नहीं पता, आई विल मैनेज इन 10 और 8। सो गिव देम 10, लेट देम मैनेज ऑन देयर ओन। हुँ। दीज थिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी बढ़ती है, बच्चे सीखते भी हैं, बच्चे समझते भी हैं। एंड एक्चुअली मैम दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ शोइंग किस तरह से पेरेंट्स ने यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉय किया वो कोलैबोरेशन का प्रिंसिपल, जिससे बच्चा समझा भी, and she ultimately, there was no conflict or argument, but she ultimately agreed with the parents decision. Thank you so much for sharing, ma'am. Anybody else would like to add anything, share any example like this या कुछ भी? I'm pretty sure other parents would also appreciate learning from your experiences or anything that you have experienced or felt. Sunita ma'am, would you like to add anything? Manju ma'am, Deepti ma'am, anybody, anything? Okay, so I would then like to sum up the session by some important points that we have covered today. एक बार, just go through them quickly. So first and the most important one to understand about positive parenting is that it is about guidance rather than control. हम अपने बच्चों की life, rather than taking in control ourselves, making the decisions for them, we should guide them in the correct direction and let them make their own decisions. Let them, take control of their life. And you should just be there as a guiding principle that, any day, any time, if your child is going through any problem, any issues or anything, they should feel safe enough to come back to you. And rather than जैसे कहते हैं ना बच्चे काफी often डर, if I tell my parents, yes Sunita ma'am, ma'am you're on mute, if you could just unmute yourself, you've raised your hand. Anything you like to share or anything? Ma'am आप mute पे है, Sunita ma'am, so if you can unmute yourself and if you want to share anything. Okay. So as I was saying, oftentimes बच्चों को ऐसी feelings आती है that if I tell my parent this, if I share this, वो मुझे डांटेंगे, मुझे गुस्सा करेंगे, मेरी गलती निकालेंगे. Rather than that, positive parenting ensures that the child always feels that what, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, आई शुड गो बैक टू माई पेरेंट्स, मैं उनको बोलूंगी, वो मुझे गाइड करेंगे क्या करना है, वो मुझे समझाएंगे क्या करना है, वो मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं और मेरी हेल्प करेंगे. So positive parenting ensures that. And these are not some big things that will happen overnight. It's not a magic wand, as I said. These are small changes जो आप अपनी डेली लाइफ कम्युनिकेशन में किए करें, अगर आप अपनी डेली लाइफ हैबिट्स में चेंजेस करें, अपने और अपने बच्चे के रिलेशनशिप में इम्प्रूव करेंगे, एंड लॉन्ग टर्म बिग इम्पैक्ट्स होंगे जो आपको एक्चुअली आज नहीं दिखेंगे, बट आफ्टर अ मंथ, just after a month you will see your child will start responding better, and एक communication better हो जाएगी in the relationship as well. And it also helps to build confidence, trust, and resilience in the child. As I said,
When they'll make their decisions independently, they'll feel more confident. When you'll be by their side through everything, they'll trust you. They'll trust you to, help them out and rescue them from anything. किसी भी situation में वो आपकी judgment, आपकी situation को trust करेंगे. And also resilience build करेंगे. And resilience is simply, कोई भी situation आ गई है, कोई भी बड़ी problem आ गई है life में, उससे deal कर लेंगे. वो सीखेंगे कैसे बड़ी situations को handle करके आगे बढ़ना है life में. These things they will learn from you as parents. And lastly, parents and teachers and educators, need to come together, collaborate with one another, how to apply these principles of positive parenting, जहाँ पे वो हर बच्चे की growth and development पे focus कर सके and, ultimately leads the child to success. So these are the basic takeaways that we discussed today about positive parenting. And these are things जो आप अपनी daily life में किसी भी age में, no matter how young or how old your child is, किसी भी age में आप शुरू करिए, तो these will definitely, help you and your child. It will make parenting smoother and easier for you, and make the home environment more comfortable and safe for the children. Um, that's all for today. I would like to open the floor if anybody has any questions, any doubts, any feedbacks, anything that you would want to share. Yeah, any questions that you may have, anything, इससे related या related to anything else. If you want to talk about anything or share anything, anybody, if you could want to, you can share that. You can either unmute yourself or type in the chat box. And I would also like to reinforce that Parent Eva's platform is a safe space where parents can come together and communicate. They can, feel safe, and they can just come together. कोई भी problems हैं, if they want to talk about anything, they can, just come here and discuss. And also Parent Eva के platform से they can, get the access to resource persons, जहाँ पे counselors and psychologists available हैं. If there any issue that you are facing personally and you may not feel comfortable enough group पे share करने के लिए, so आप उनसे वो कर सकते हैं कि आप वन ऑन वन काउंसलर से या साइकोलॉजिस्ट से बात कर सकते हैं, जहाँ पे दे कैन हेल्प यू विद लिटरली एनी प्रॉब्लम्स दैट यू मे बी फेसिंग, एनी इश्यूज, चाहे वो आपकी है चाहे आपके बच्चे की है. And let me just share the group link. Just give me 1 second. I'll share the group link, and then we can you all can join the group. For those who are not on the group, just give me 1 second. I'll add the link in the chat box. And all of the parents who have joined, thank you so much for joining today. You will be getting certificates of participation since you guys participated in this webinar. तो आप सबको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए. So this is, I have shared the WhatsApp community link and I have pinned it. So those of you who are not part of the community already, you guys can join. And at the end, you all will get a certificate of participation in the webinar. Anybody would like to share anything, कोई feedback and anything? आपका जितना भी था वो सारा बहुत अच्छी तरह से गाइड किया आपने। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों के साथ कैसे डील करना है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, स्कूल गोइंग हों या टीनेजर में हों, ये सबके ऊपर ही काम करता है, ऑल ओवर। तो थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Means a lot. If anybody would like to add anything, please ensure that you join the group. We keep on sharing insights and parenting tips and anything related to parenting. We keep on sharing that. And, any issues, anything that you might feel at any point of time, you can any day type there, or you can text me personally as well. Give me a call. I am there on the group. So you can just reach out to me and we can have like a one-on-one session. Thank you so much, Sunita ma'am. Thank you so much for joining us today. It was great to have you. And everybody, thank you so much for joining us today. We look forward to seeing you ahead as well in all of the, we'll keep on having webinars and other discussions, and, we would love for all of you to participate in all of those things. Thank you so much, Sunita ma'am.
Thank you, Manju ma'am and Deepti ma'am as well. Thank you so much for joining. You may all leave. Thank you.